Today webinar is on transforming nursing care beyond treatment. And today our esteemed expert is Miss Deepa Chugh ma'am. She is Nursing Director and Professor AVBRH, Datta Mega Institute of Higher Education and Research. She is also an NABH assessor. She has published various scientific papers in national and international journals. So without wasting time, so it's over to you, ma'am. You can start webinar. So good afternoon, all of you all. And it's always been a privilege to be associated with Astron. I think it's been now around 6-7 years, I guess, that I've been associated. And it's my pleasure, I would say, that I'm able to share the knowledge which I have, the expertise which I have. And it will always remain the same for the students and the faculty who are there in Astron. Okay. Thank you so much. So the topic today which we are going to deal with is something which the government of India has taken it at a very larger scale, not only in healthcare but across industries. Mainly, you would have heard about the word Viksit Bharat. The word Viksit Bharat means that you are empowering your own people to come up to that level that they are able to conduct any industry by themselves. So when we talk about health industry, uh, we look at preventive strategies and promotive strategies. So what is this health promotion and prevention of health? We have spoken, today you see every city, be it tier 2, tier 3, or even grassroots level, there's so many hospitals coming up. So we have been talking about, and we are putting our entire emphasis on treatment. So in that race of the treatment part of it, we have forgotten the prevention part of it, which is more important. As very, old saying goes, prevention is better than cure. But what are we actually doing on prevention? And how am I, as an individual, as a citizen of the country, and is able to bring promotion of health? Not only to myself, to my family, also to the community, also to the country at large. So, this is what we are going to talk about today. So, first, let us understand what basically is we are going to talk about. We are going to talk about the nursing care which we are supposed to be giving, not only in the four walls of the hospital. This same hospital, the same nurses will be transforming the nursing care beyond treatment. Not only treatment, prevention, as well as promotion. So, when we say nursing part of it, how am I as a nurse going to prevent any illness? I can do it sitting in the hospital. I can also go to the community. And how are we going to do this? This is what we are going to, talk about it today, understand it today, and not only to the community, to the country at large. We are going to talk about how you and me can bring in these changes in our day-to-day life. So let's just first understand what exactly health promotion is. So when I say health promotion, it is nothing but the development of behaviors that improve bodily functioning and enhance an individual's ability to adapt to a changing environment. सिंपल मैं एक एग्जांपल दूंगी और चलो पहले एक बार क्या करते हैं अपन पहले एक डेफिनेशन समझ लेते हैं उसके बाद में आपको एक जनरल एग्जांपल देके आपको समझाया जाएगा डिजीज प्रिवेंशन क्या होता है डिजीज प्रिवेंशन इज involves actions to reduce or eliminate exposure to risk that might increase the chances for individual or group to incur disease, disability or premature death. जब हम प्रिवेंशन बोलते हैं मतलब हम कोई भी चीज को ट्राई कर रहे हैं कि वो हमारे तक पहुंचे ना या आपके पेशेंट तक पहुंचे ना वो होता है प्रिवेंशन प्रमोशन ये होता है कि वो अब आपकी आदत बन जाए सिंपल एक एग्जांपल देना चाहूंगी आप सब लोग जब रास्तों पे जाते हो आपने सबने सिग्नल देखा हो चाहे वो हमारे बचपन से लेके हो या अब तक या आगे भी इट विल रिमेन स्टैंडर्डाइज लाल बत्ती मतलब हमें रुक जाना है
और इन मतलब अभी चांस आ रहा है कि आपको रुकना पड़ेगा, तो स्लो डाउन हो जाओ. इट्स अ इंडिकेशन दैट यू आर सपोज टू स्टॉप. And green is you are allowed to go. Okay, so this is prevention. The the traffic police, the process of traffic policing is stopping you from not landing up into accident. But say for example, if that square or any other square where there's too much of traffic, you automatically see right and left, you automatically see from where the direction the traffic is coming, something is happening. At that time you automatically stop. You let some old age people go, you are allowing public transport to go first. This is health promotion. Even if the signal does not work, still you follow all the rules and regulation. That becomes health promotion. So simple है. Prevention is कि आपको वो स्टार्ट करवाया जाता है कि यू ट्राई एंड प्रिवेंट एक्सीडेंट. हेल्थ प्रमोशन वो एक चीज हो जाती है कि वो अब आपकी एक आदत बन गई है. तो ये दो अलग चीजें हैं, बट उनको कंबाइन अगर हम कर दें, देन इट विल एड ऑन. लेट मी नाउ टेक अ एग्जांपल ऑफ इन्फेक्शन. मुझे हाथ धोना है हर प्रोसीजर से पहले, पेशेंट को टच करने से पहले, खाना खाने से पहले, पेशेंट को खाना खिलाने से पहले, सब कुछ करने से पहले. एसेप्टिक टेक्निक हो कि कुछ हो, मुझे हाथ धोना है. व्हाई? बिकॉज माय हैंड्स आर mechanism from where the bugs can go to the patient. Now, this is prevention. You are preventing the infection to go to the patient, and that's why you're washing your hands. Or or you are preventing those infections to come to me, myself. If I'm not washing, eating, I'm not washing and touching my face here and there, I am prone for infections. Health promotion क्या है? It becomes part and parcel of your life. It becomes कि आप बिना धोए आप कर ही नहीं सकोगे कुछ. आप घर गए बिना धोए, बिना हाथ धोए आप कोई भी चीज को टच कर ही नहीं सकते. इट इज सो इनग्रिल्ड, इट्स नाउ योर बिहेवियर. Okay, so that is when a habit converts into a behavior is called as health promotion, and when it becomes a habit, it is health, is disease prevention. Okay, so how are we going to inculcate those values? हम कैसे उसको अपने जीवन में और अपने पेशेंट के जीवन में लाने वाले हैं, वो आज हम थोड़ा सीखने वाले हैं. I hope everyone is okay with English and Hindi together, because that is what is told to me. Yes. If any time Yes. anyone is having any problem और आपको लगता है कि आपको इसका एक्सप्लेनेशन नहीं मिला है या कुछ है, या तो आप चैट बॉक्स में डाल दो, तो हम आखिरी में उसको डिस्कस कर लेंगे, या आप बीच में रुक के भी पूछ सकते. ओके, लेट्स गो फर्दर एंड सी what are we aiming at when we say health promotion and disease prevention. तो हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य ये है, प्रॉब्लम्स है जो प्रिवेंट हो सकते हैं, को हम पहले ही रोक लें. क्यों? क्योंकि हम उसको अपने पास तक आने नहीं चाहते. अब आप बहुत बार सुनते होंगे, कंट्री इज द कैपिटल फॉर डायबिटीज. पूरे वर्ल्ड में जितने डायबिटीज हैं, अपनी कंट्री में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ डायबिटीज. तो ये क्या है? क्यों हुआ ये डायबिटीज? इज इट ओनली बिकॉज ऑफ जेनेटिक रीजन? मेरे ग्रेट ग्रैंड फादर को एंड ग्रेट ग्रैंड मदर को तो नहीं था, तो आज हमें क्यों हो रहा है? राइट? So it's not always genetics. So this is what our aim is, to identify the health problems. सबसे पहले understand that as nurses, what is the health problem, and we are not going to talk on तुम्हारा, मेरा और X patient और Y patient का. We are looking at larger aspect. We are looking at कि हमारे देश में क्या प्रॉब्लम है, मेरे प्रांत में क्या प्रॉब्लम है. ओके, हमारे पास में जोरों शोरों से लगी हुई है कि हेल्थ प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज या छोटे सेंटर्स जो रहते हैं, सब सेंटर्स. आपने देखा होगा, आई डोंट रिमेम्बर, आज से 10 साल पहले भी CHO की इतनी डिमांड थी, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर. आज के समय में एक अलग से एग्जाम होता है. एवरी स्मॉल विलेज एंड एवरीथिंग इज हैविंग अ
द हेल्थ ऑफिसर जो एक नर्स है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, सीएचओ। सो सीएचओ की पोजीशन क्रिएट की गई है, उनको वहां पर एम्पावर किया गया है कि आप ये ट्रीट कर सकते हो, ये एस्केलेट कर सकते हो। जो प्रोसेसेस गवर्नमेंट ने बनाए हैं वो सब जो हो रहा है, तो गवर्नमेंट भी हमारी चाह रही है कि लोग इतना दूर तक शहरों तक ना आए और हम उनके पास में जाएं। तो जो ये जो जो आज के समय की बीमारियां हैं वो हम उसको देख सकें और उसको हम सही समय पे इलाज चालू करें। आई गिव यू वन सिंगल अगेन एग्जांपल, like just 3 days back in our hospital only, there was this young person, 47-year-old. Okay, 47-year-old person comes with an infarct. Why? Because this person had a severe infarct. Immediately surgery के लिए लेके गए, but unfortunately we were unable to save this patient. Why? Because just a young 47 years old person had had hypertension, आइडेंटिफाइड हाइपरटेंशन 2 years बैक। बट उसने क्या किया, उसने बोला मैं तो इतना यंग हूं, मैं चलता फिरता भी हूँ, दवाइयां नहीं ली, कुछ नहीं ली। और फिर जब तकलीफ होती थी जाता था डॉक्टर के पास में, वहां से 2 दवाइयां लेकर आया, 2 दिन लिया, तीसरे दिन से बंद। Ultimately it went on increasing. He came in a non-responsive state in spite of taking this patient for a surgery, unable to survive. Such a loss to the family, such a loss to the nation. So, this is where the neglect is. The neglect is of the individual, the neglect is of the system, the neglect is not only a nurse or anyone. We're not pointing out, but हम एक अहम टीम मेंबर है, हेल्थ केयर के एक बहुत अहम टीम मेंबर है। जब हम अहम टीम मेंबर है तो हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। If someone would have given good health education to this person, जब ये आइडेंटिफाई हुआ, अगर हम में से किसी ने एक ने समय देकर उसको समझाया होता, उसके परिवार को समझाया होता, हो सकता है आज ये नौबत नहीं आती। पर आज क्या नौबत है, एक यंग इंसान जो सिंगल अर्निंग मेंबर उस फैमिली का था वो भी जा चुका है। सो दिस इज वेयर the importance of nurse is, this is where the importance of prevention is, this is where importance of promotion is. Okay, so this is how we will have to, we are looking forward in this session. Let us understand the natural history of disease, ये disease होता क्या है ना। तो डिजीज में कैसे होता है, पहले जो अंडरलाइन कॉज रहता है, कोई भी डिजीज देख लो, चाहे आप वो कोलिलिथियासिस देख लो, कुछ हुआ है पेशेंट को, हाइपरटेंशन देख लो, डायबिटीज देख लो, कार्डियक, ऑर्थो, न्यूरो, नेफ्रो, यूरो, whatever disease condition, even eye and ENT and anything, hair, skin, anything you look about, there must be some underlying cause to it. अंडरलाइन कॉज बहुतों को होता है, समझो कोविड, इतने इतने सारे ऑर्गेनिजम्स ऑल अराउंड, देयर वाज अ अंडरलाइन कॉज, वी ऑल नो दैट, आई विल नॉट गो इन द डिटेल्स ऑफ इट। बट क्या सबको कोविड हुआ? नहीं। और अगर जिनको हुआ भी, क्या उस लेवल पे हुआ कि उनको रिकवर नहीं हो सके? नहीं, ऐसा भी नहीं हुआ। सो दैट इज ससेप्टेबिलिटी। मेरी क्षमता अलग है, आपकी क्षमता अलग है। ओके, सो दैट इज व्हाट इज ससेप्टेबिलिटी। अगर मेरा इम्यून सिस्टम वीक है, मैं मेंटली वीक हूं, मैं फिजिकली वीक हूं, आई एम ससेप्टेबल फॉर kind of disorders and diseases. So that is what the second level of disease is. Then is subclinical level. Subclinical level is something like genetics, something like the area where you are born, something like the geographical location. All these things are subclinical factors of a disease happening to anyone, be it you, me, or any patient also. Then comes is the clinical factor. Clinical factor is, अगर समझो मुझे कोई, समझो कोविड हुआ, तो मुझे अभी क्या क्लिनिकल फीचर्स है? क्या सबको अनोस्मिया था? क्या सबको कफ था? क्या सबका सैचुरेशन डाउन हो रहा था? क्या सबको फीवर था? ऐसा नहीं, इट वॉज डिफरेंट।
है ना? सो हर एक को अपना एक अलग सेट ऑफ इंडिविजुअल क्लिनिकल फीचर्स होंगे, बट कंबाइंड जब हम लेते हैं तो हम बोलते हैं कि ठीक है, अगर किसी को डायबिटीज है उनको यही ऐसा हो, किसी को कोविड है उनको यही है, किसी को कोलिलिथियासिस वाला पेन है तो वो किस टाइप का पेन होगा, बिकॉज दीज आर जनरलाइज्ड वन, सो दैट इज द क्लिनिकल पार्ट। एंड देन कम्स इज वेदर with this clinical condition a person is getting recovered or is having a permanent disability। समझो अगर intestinal obstruction है और GI related anything and a patient is gone on a colostomy, so that is a permanent disability. Now this person is not going to pass motions at all. Imagine the plight. That is a permanent disability. Bag लगा के पूरी जिंदगी चलना पड़ेगा. That is disability. Or else this person is landing up into death. Like I gave you example, एक जो example अभी 47-year-old का infarct का आपको बताया, हाइपरटेंशन इतना ज्यादा बढ़ गया कि पेशेंट सडनली कोलैप्स्ड, हॉस्पिटल तक लाते लाते, ओटी तक लेते जाते पेशेंट इज गॉन, दैट इज डेथ। सो डिजीज जब होता है वो सिर्फ एक तरफा नहीं होता, देर आर लॉट्स ऑफ फैक्टर्स। दैट्स व्हाई वी से डिजीज इज मल्टी फैक्टोरियल। मल्टी मतलब एक से ज्यादा, फैक्टर फैक्टोरियल इज एक से ज्यादा फैक्टर्स जब आ जाते हैं तो वो डिजीज हो जाती है। Let's target now how are we going to prevent? What are the level of prevention? पहले जब हम पढ़ाई करते थे तब सिर्फ 3 लेवल हुआ करते थे. Of recently, from 10 a decade plus, I think, we've started thinking of a step ahead. We say we start with primordial factor. Primordial factor क्या होता है? It is risk factor reduction, which is targeting to the entire population through focus of societal, social, and environmental conditions. Say, for example, is this where I am right now? It's a place in Maharashtra, Vidarbha, a region called as Vidarbha. Here, a lot of patients we will find of oral cancers. Okay, a lot. Now, not necessary that I belong to this place, so I will also get oral. Not like that. But बहुत सारे पेशेंट्स को, अब उसमें क्या रीजन है? रीजन ये है कि बहुत सारे पेशेंट्स यहाँ पर तंबाकू खाते हैं. Men, I would say 80% of the men would have tobacco, chewing. They chew tobacco a lot. The ladies, they apply it on their gums. So tobacco use is quite rampant in this place. So you have to identify, okay, मैं विदर्भा में हूँ, मेरे इधर ये बहुत कॉमन चीज है. एक और चीज बहुत कॉमन है, अनीमिया amongst women is very high. Why? Because the diet which is there is of that sort. Okay. Even if you see in various part of the countries, like if you see Kerala, you'll have lot of patients with GI related issues. Now, why it's happening? The food pattern which they have. So आपको वहां से स्टार्ट करना है, वो होता है प्रिमोडियल प्रिवेंशन. तो आप जिस प्रांत में है, जिस सेक्टर में है, जोग्राफिकल लोकेशन क्या है, आपको पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि इस एरिया में क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो मेरे पॉपुलेशन को, मेरे इधर के लोगों को हो सकती है. From there the prevention start. Okay, if this area is having a lot of tobacco issues, and because of that a lot of oral cancers, head and neck cancers are there, so let me have the preventive strategy should start with that. Anemia hai amongst women because they are not aware of their food habits, dietary habits. खाने में जो एक संतुलित आहार होना चाहिए वो उनका नहीं है. इधर फार्मर्स बहुत ज्यादा हैं और गर्मी के समय में बहुत गर्मी होती है, तो उस समय खेत पूरे ड्राई हो जाते हैं, खाने के लिए भी नहीं होता है कुछ कुछ लोगों के. सो हाउ आर वी गोइंग टू टैकल दिस? तो दैट इज प्रिमोडियल प्रिवेंशन. ओके. फिर आता है प्राइमरी प्रिवेंशन. हम जब बोलते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन इज इट इन्वॉल्व्स एक्टिविटीज विच विल लिमिट एक्सपोजर एंड इंक्रीज द इम्यूनिटी. अब मुझे पता है प्रिमोडियल में कि भाई चलो, मुझे
लार्जर एरिया का टारगेट करने। फाइन। अब मुझे प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या करने का है, उसमें से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अब विदर्भा के सब लोग को तो कैंसर नहीं होगा, गिने चुनों को होगा ना, तो अपनी एक टारगेट पॉपुलेशन निकालनी पड़ती है, टारगेट पॉपुलेशन को, और उन्हीं को ही सिर्फ प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज बतानी पड़ती है। एट लार्ज यस, टीवी में, रेडियो में, न्यूज़पेपर में आप कर सकते हो। आप हर मूवी देखने जाते हो तो आपने एक एड देखी होगी, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल से एक एड आती है जिसमें सिगरेट स्मोकिंग, टोबैको पे 3 मिनट की एड दी जाती है, उसके बाद नेशनल एंथम होता है, उसके बाद आप पिक्चर देखते हैं, है ना, कोई भी पिक्चर। तो वो क्यों जरूरी है? क्योंकि यू वांट टू हैव अ लार्जर पॉपुलेशन शुड नो अबाउट द साइड इफेक्ट्स ऑफ टोबैको। वो हो गया प्रिमोडियल प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन क्या होता है कि अगर एक इंसान रोज इतनी बीड़ी पी रहा है या इतने तंबाकू खा रहा है, तो आप उन्हीं को पकड़ के उन्हीं को ही समझाने की कोशिश करोगे, उन्हीं का ही तंबाकू छुड़वाने की कोशिश करोगे। वो होता है प्राइमरी प्रिवेंशन। ओके। वो प्रोग्रेसिव लेवल पे होता है और आप टारगेटेड पॉपुलेशन पे करते हो। देन आता है सेकेंडरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या होता है कि अब आपको बीमारी हो गई, आपके पेशेंट को बीमारी हो गई, अब आप आगे ना बढ़े वो बीमारी, उसको कंट्रोल हो, उसके लिए जो भी आप ट्रीटमेंट या ऐसी चीजें समझो। फॉर अगेन आई विल गिव एग्जांपल, हाइपरटेंशन किसी को हो गया, हो गया हो गया, आप क्या कर सकते हैं? अब जो हो गया, जाने दो। आगे क्या करना है? मुझे डाइट किस प्रकार की खानी है, मुझे पानी किस प्रकार का पीना है, मेरे रीनल फैक्टर्स कैसे होने चाहिए, मुझे कब कब अपने ब्लड इन्वेस्टिगेशंस करवाने हैं, मुझे कितनी बार दिन में ब्लड प्रेशर चेक करना है, या मुझे बीपी की दवाई कितनी कितनी लेनी है, कौन मुझे देगा वो दवाई, है ना। तो ये सारी चीजें आती है सेकेंडरी प्रिवेंशन में, जो आपको आपके पेशेंट को बता, जो आज आप और मैं रोज हॉस्पिटल में करते हैं, वो होता है सेकेंडरी प्रिवेंशन। देन इट कम्स आउट टू बी टर्शरी प्रिवेंशन। टर्शरी प्रिवेंशन प्रिवेंशन हो जाता है कि चलो हो गया हाइपरटेंशन भी, उसके कारण भी कुछ हो जाता है, तो अब आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कैसे करना है। ओके। अब आपको उसके साथ जीना पड़ेगा। अगेन वन एग्जांपल आई विल गिव यू ऑफ टर्शरी प्रिवेंशन। समझो किसी को डायबिटीज थी, अब डायबिटीज अनकंट्रोल्ड डायबिटीज थी, उसके कारण फुट अल्सर हो गया, फुट अल्सर होने से घाव हो गया, घाव होने से नेक्रोसिस भी हो गया, एम्प्यूटेशन हो गया लेग का, बिलो नी एम्प्यूटेशन भी हो गया। अब क्या ये इंसान वापस कम्युनिटी में जाएगा तो उसको क्या क्या करवाना पड़ेगा? अब उसका सिर्फ डायबिटीज नहीं मैनेज करने का, उसका घर बार भी देखना पड़ेगा, उसका वो क्या टाइप का जॉब कर सकेगा क्या नहीं करेगा, दैट ऑल ऑल्सो विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर वो इंसान जाके कुछ नहीं करेगा और दूसरों पे डिपेंडेंट हो जाएगा, उसकी डाइटरी फैक्टर्स और कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगी, और फर्दर उसको डायबिटीज वर्सन होने का सिचुएशन आ जाएगा। दैट comes out to be a tertiary prevention. Okay, so all these things when you combine together, it comes into the umbrella of prevention. तो आपको लार्जर पॉपुलेशन से लेकर टारगेटेड पॉपुलेशन से लेकर इंडिविजुअल तक जो आप प्रिवेंशन लेवल करते हो, उसको लेवल ऑफ प्रिवेंशन कहा जाता है। ओके। अगर आप एक सीएचओ हो तो आप प्राइमरी प्रिवेंशन और प्रिमोडियल प्रिवेंशन पे ज्यादा एम्फोसिस करोगे। अगर आप एक नर्स हो जो हॉस्पिटल में काम कर रहे हो, तो सेकेंडरी प्रिवेंशन पे आप ज्यादा फोकस्ड रहेगा आपका। अगर आप कम्युनिटी में अगेन और जब हॉस्पिटल में काम करते हैं, तो इट इज नॉट ओनली सेकेंडरी ऑल्सो, टर्शरी ऑल्सो, क्योंकि घर पे जाके उन्होंने कैसे देखना है, क्या करना है, वो टर्शरी प्रिवेंशन में आ जाएगा। सो यू कैन डिवाइड इट इनटू हाफ। half things are in the community at large and half things are which the hospital can do. So wherever you are working, be it you are a CHO, be it that you are a PHN, or you are a nurse working in the hospital, you have one of the major role is preventive strategy. And एक चीज और आप लोग को बताना चाहती हूँ, जैसे नर्सिंग में कैसे होता है, दिस इज वेरी दिस प्रोफेशन इज अ वेरी डिपेंडेंट प्रोफेशन। बहुत सारी चीजें हमें डिपेंड करना पड़ता है डॉक्टर पे,
कि भाई वो ऑर्डर देंगे, प्रिस्क्रिप्शन देंगे तो हम करेंगे, राइट। पर प्रिवेंशन के लिए ये एक ऐसी जगह है, ये एक ऐसी चीज है जहां आपको किसी की वेट भी नहीं करनी है, किसी का ऑर्डर ही नहीं लेना है। ये आपका है, यू दिस इज अ इंडिपेंडेंट बॉडी ऑफ अ नर्स। मैं अगर आज जाऊं अपने 60 पेशेंट को भी लेकर मैं कुछ हेल्थ एजुकेशन दूं या उनको कुछ एक रेसिपी बना के दिखा दूं और उनको बोलूं कि ये अपने घर में बनाओ, या कुछ बच्चों को लेकर आके उनको सिंपल हैंड हाइजीन का ये करवा दूं, तो कोई मुझे रोकेगा? कोई नहीं रोक सकता है। दिस इज माई इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस। आई वॉन्ट टू डू इट फॉर माई पेशेंट्स, आई विल डू इट। So this is how it works. Okay. So this is all about the level of prevention. L- Let us now see how are we going to, this is just a brief of how a broader way health promotion can be done. पहले है आप enable करोगे, मतलब आप हाथ बढ़ाओगे कि yes, all people should achieve full health and potential. मतलब आपको भी ये एक स्ट्रैटेजी समझनी पड़ेगी कि ये ओटावा चार्ट में एक स्ट्रैटेजी आइडेंटिफाई की हुई थी, जिसमें दे आइडेंटिफाइड दैट ऑल पीपल, एवरी इंडिविजुअल हैज द राइट, इवन हमारे संविधान में ये चीज लिखी हुई है दैट हर इंसान को, हर इंडिविजुअल जो एक भारतीय है, उसको हक है अच्छे हेल्थ केयर का। अगर उसको हक है तो मेरा क्या रोल बनता है एज अ नर्स? आई हैव टू मेक ऑल द पीपल कम इनटू दैट अम्ब्रेला बिटवीन द डिफरेंट इंटरेस्ट इन सोसाइटी इन परस्यूट ऑफ हेल्थ। मतलब हर एक का अलग अलग उद्देश्य रहेगा हेल्थ की तरफ। मैं एज अ नर्स उसको एक एक मैं चैनल बनना है, मुझे एक मीडिएटर बनना है हर इंसान को उस मुकाम तक पहुंचाने का। और उसके लिए मुझे एक एडवोकेट भी बनना पड़ेगा पेशेंट के लिए। अगर मेरे पेशेंट को, समझो एक मेरा पेशेंट है जिसको हाइपरटेंशन की दवाई मिल नहीं रही है गवर्नमेंट से, चाहे वो सरकार के स्कीम में आता है, उसके पास में आधार कार्ड है, उसके पास में आयुष्मान भारत का भी कार्ड है, बट उसको मिल नहीं रहा है। आई एज अ नर्स एम एडवोकेट फॉर दिस। तो उसकी जो लिखा पड़ी है, उसका जो काम करवाने का है, with the help of the social workers we will be able to do it, but हमें कदम बढ़ाना पड़ेगा, right? This is what the health promotion strategy talks about. इसके कुछ की स्ट्रैटेजीज हैं। उसके लिए आपको क्या करना है? हेल्थ प्रमोशन, हेल्थ को आगे बढ़ाने के लिए, इंसान को उसके बिहेवियर में लाने के लिए ना, आप देखो, अगर आप बहुत बार देखते हो लोग कॉमनली इधर उधर थूकते हैं, कचरा डालते हैं, आपके घरों के आसपास भी आपने देखा हो। हम उसको कैसे सुधार सकते हैं? पहले तो हम खुद ना करें। हम्म? और उसके बाद में पब्लिक के लिए जो हेल्थ पॉलिसीज है वो सिंपल थिंग लाइक कचरा कचरे के डब्बे में ही डालना है। और आप हर कॉलोनी में आप जाते हो तो बाहर ये आजकल तो आते हैं गाड़ी वाले जो आपके घर से कचरा लेकर जाते हैं। समझो अगर कोई नहीं करता है तो एज अ कम्युनिटी मेंबर वी आर सपोज टू गाइड देम, वी आर सपोज टू टेल देम। और ऐसा नहीं है कि लोग आजकल के इसमें सुनते नहीं है या गवर्नमेंट लेते हैं, बट आवर पॉपुलेशन इज सो लार्ज दैट इट बिकम्स अ स्मॉल मिनिस्क्यूल। सरकार भी बहुत ज्यादा एफर्ट्स लेते हैं, हम भी एफर्ट्स लेते हैं। इवन व्हेन आई सी माय पीपल इन एंड अराउंड दैट दे आर loitering things over here and there, I say, yes, many a times they feel bad about it. But if you write it to the government और पंचायत में या कहीं पर भी जहां पर आपका एरिया है, वो लोग एक्शन लेते हैं। और आजकल तो इट इज बिकम सो इजी दैट वी कैन इवन व्हाट्सएप, इवन we have sites, websites with the government that if we put with the picture a complaint, it gets sorted out. So the public health system is becoming stronger and stronger, but it is the role of a individual, एक भारतीय होने का भी हमें रोल निभाना पड़ेगा, सिर्फ एक नर्स होने का नहीं। मैं एक सिटीजन हूँ इस कंट्री की, तो मुझे उसका भी रोल निभाना पड़ेगा। सो पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज है, पॉलिसीज बनी हुई है, सरकार की बहुत सारी गाइडलाइन है। हम में से कितने लोगों को ये पता है कि कितनी सारी हेल्थ स्कीम्स हैं? बिलीव मी, 1 साल पहले तक शायद मुझे भी नहीं था।
एक साल पहले जब मैं इस हॉस्पिटल में आई तो मुझे पता पड़ा, अरे सरकार की इतनी सारी फैसिलिटीज हैं। बिकॉज दिस हॉस्पिटल वेयर आई एम वर्किंग, देर आर ह्यूज नंबर ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स दे डू. You would not imagine this hospital has 67 social workers. I was like 67 करते क्या हैं ये लोग? एंड वो भी कम पढ़ते हैं, क्योंकि द काइंड ऑफ पब्लिक अवेयरनेस, द काइंड ऑफ पब्लिक सेक्टर में जो काम करने वाली चीजें हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है. ओके, सो वन इज टू बिल्ड योर पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज. सेकेंड इज टू सपोर्ट दैम, सपोर्ट क्रिएटिंग एन एनवायरमेंट. अगर सब अस्पताल मिलकर सरकार की जो फैसिलिटीज हैं, भी आपने देखा होगा जब आयुष्मान भारत इम्प्लीमेंट हुआ तो कुछ हजार लोग ही थे, उससे 1 लाख हुए, उससे 5 लाख हुए, आज करोड़ों में लोग हैं जो इस स्कीम का फायदा ले रहे हैं. वैसे ही एमजेपीजेवाई होता है, वैसे ही अपने बहुत सारे हेल्थ के, जैसे अगर आप कर्नाटका में चले जाओगे एक अलग स्कीम है सरकार की, उनके स्टेट गवर्नमेंट की. If you go to Maharashtra, if you come to Maharashtra, there is a different scheme. So every Tamil Nadu, you go to another, West Bengal will have another. So it is our responsibility to first understand those schemes also, okay, and strengthen the community to ask for it. We'll have to develop that. Also, do you know that every hospital by the government have to admit 10% of the patients who are poor, who are having the white color ration card. ये सरकार का कानून है, और वो कानून के तहत आपका हॉस्पिटल भी लायबल है वो सब करने के. क्योंकि हमें पता ही नहीं है तो हम पूछते ही नहीं. हमें पहले पता होना पड़ेगा, इसलिए यू हैव टू स्ट्रेंथन योर कम्युनिटी एक्शन. पर्सनल स्किल्स आपके बढ़ाने पड़ेंगे. आप आपके पेशेंट के लिए एक एडवोकेट बनना पड़ेगा. आपको पूछना पड़ेगा, अपने लिए भी करना पड़ेगा. एंड reorient health. Health is not the responsibility of a doctor or a nurse. Health is responsibility of every individual. हर इंसान की हेल्थ उसके हाथ में है, डॉक्टर और नर्स के हाथ में नहीं है. सो यू विल हैव टू रीओरिएंट दैट, एंड यू आर वन ऑफ द पर्सन जो पेशेंट्स के साथ में पूरा पूरा दिन आप बिताते हो. तो वो आपकी जिम्मेदारी है, वो ही वी आर ट्राइंग टू टेल. ओके, नाउ how are we just, how are we going to approach to health promotion? हमारा क्या पर्सपेक्टिव होना चाहिए? इसके लिए तो मैं बोलूंगी आप पहले अपने लिए करो, अपने परिवार के लिए करो, वो आपकी एक आदत बन जाएगी तो आप सबके लिए करो. नाउ, टू द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑफ हेल्थ प्रमोशन एंड हेल्थ प्रिवेंशन इज अ हेल्दी लाइफस्टाइल. एक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. few years back when I was in Delhi, I was working in one of the reputed hospitals, and hospital के बिल्कुल opposite में हमारा hostel रहा करता था. Okay, so one fine day, I had few of my nurses, हर आए के दिन पेट में दर्द होता है, ये होता है वो होता है. तो मैंने बोला चलो एक काम करते हैं, वार्डन के साथ में मी along with few of my other senior nurses, हम 3 लोग मिलके हॉस्पिटल के नर्सेस हॉस्टल में गए. और उस दिन पे हमने कचरा जाने नहीं दिया, क्योंकि कचरे वाली जो गाड़ी आती थी वो सुबह सुबह आ जाती थी. तो हमने बोला आज के दिन पे, अब नहीं, हमारा ये प्लानिंग था कि हम जाएंगे और हम कचरे के डब्बे खोल के भी देखने का है कि ये लोग क्या खाते हैं. यू वोंट बिलीव, उस हॉस्टल में हमारे पास में करीब 125 नर्सेस रहती थी. इन वन सिंगल डे we got around 47 packets of khali packet of Maggie, अराउंड 28-30 के आसपास के पैकेट्स बिस्किट्स के थे, और चॉकलेट के रैपर्स और ये वो. जब अगर हमने देखा तो 125 नर्सेज रहती थी, पर हमारे पास में अराउंड 200 प्लस जंक फूड के पैकेट्स मिले. यू इमेजिन, ओनली इन वन डे 24 घंटे का कचरा अगर हमने देखा. This was the state, and we did a audit on it, that what are the nurses eating. When we checked it out, और ये हमने कचरा रखा, this was one part of the audit. The second part of the audit was dietitians were deployed for doing this.
कि आप जाइए और हमारे नर्सेस से पूछिए जस्ट सिंपल 4-5 क्वेश्चंस, and they themselves were so amused. They said ki madam, the health of your nurses are really at stake. So how many of us are putting ourselves into a healthy lifestyle? Healthy lifestyle does not mean only eating home cooked food. It also means a balanced mental health, a balanced physical health, getting up decent time early. तो आज के समय में मैं early नहीं बोल सकती हूँ, लाइफस्टाइल लोगों की काफी चेंज हो गई है, stress factors, the working hours have changed. So at least a decent time, 11 बजे तो नहीं उठा जा सकता है ना? तो सही समय पे उठना, समय पे एक नींद, आपकी अच्छी नींद, वेयर इज दिस हैपनिंग एज नर्सेस? हमारे साथ में भी हो रहा है क्या? हमें पहले ये क्वेश्चन करना पड़ेगा। देन प्रिमोडियल प्रिवेंशन जो रहता है वो आपने और मुझे भी अपनाना है। दिस सेशन प्लीज आप ये सोचिए कि आज हम लोग इसलिए नहीं आए हैं कि हमें समाज ठीक करना है, पहले हमें अपने आप को ठीक करना है। अगर आप और मैं मिलकर, हम नर्सिस कम्युनिटी जो है वो इतनी बड़ी कम्युनिटी है कि अगर हम पहले उसको अपने बिहेवियर में अपना लेंगे, अपने जिंदगी में अपना लेंगे, तो हमारी देखा देखी शायद पूरा समाज भी चेंज हो सकता है। इतनी बड़ी कम्युनिटी है हमारी। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट, एंड देन also that these factors which are there in the community, like smoking हो गया, wrong eating habits हो गया, then sleep patterns हो गए, पेरेंट्स का बिहेवियर हो गया, ये सारी छोटी 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 चीजें जो एक कम्युनिटी में रहती हैं, वो रिस्क फैक्टर्स हैं आगे लंबा जाने के। क्यों आज हम डायबिटीज कैपिटल बन चुके हैं पूरे वर्ल्ड के? ये कोई अच्छा नाम तो है नहीं, हम बुरी चीजों में आगे बढ़ रहे हैं। सो ओबेसिटी, इंडिया हैज कम आउट टू बी द थर्ड कंट्री अमंग्स द ओबीस पीपल। आज से 20 साल पहले भी ऐसा नहीं था। क्यों हम इतने मोटे होते जा रहे हैं? हम ऐसा क्या खा रहे हैं, क्यों हो रहा है, राइट? सो दीज आर ऑल द फैक्टर्स विच वी हैव टू टेक एक्शन ऑन। We have to build resilience on it, maintain healthy lifestyle not only for ourselves, for our community, for our family. अगर आप एक इंडिविजुअल अपने फैमिली को भी ले लें, जिसमें 8, 10, 12, 15 लोग जितने भी होते हैं, क्लोज फैमिली, इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। पॉपुलेशन के लिए आपको क्या करने का, आप क्या कर सकते हो एज ए नर्स? व्हाट ऑल थिंग्स यू कैन डू इज अर्ली डिटेक्शन। हेल्थ प्रमोशन का एक वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज हेल्थ प्रमोशन, अर्ली डिटेक्शन। अब आपके हॉस्पिटल में भी देखते होंगे, फला फला कैंप हो रहा है, 50 रुपए में अनगिनत ये इन्वेस्टिगेशंस करवा रहे हैं, या 500 रुपए में आपके सीटी स्कैन भी हो रहा है, कुछ हो रहा है, इतने सारे अर्ली डिटेक्शन वाले कैंप्स होते हैं। आप जितना उसको प्रोपोगेट करेंगे, होगा, आगे बढ़ेगा। We have to encourage. If you and me are coming to a position where you and me can take decisions in the organization, then we have to make these decisions, because every organization also have CSR funds. So we have to utilize the funds. We have to utilize the funds for betterment of the community. Okay. अगर किसी को डिसेबिलिटी हो जाती है तो उसको मिनिमाइज करने का है कि आगे ना बढ़े। लाइक आई गेव यू एग्जांपल ऑफ अ डायबिटिक फुट, तो उसको हम कैसे आगे ना बढ़े, आगे परेशानी ना हो, उसको आर्टिफिशियल लिम्ब देना, उसको उस चीज के लिए हेल्प करना, फाइनेंशियल, उसको उसकी फैमिली क्या करेगी, ओके, मेडिसिन कैसे आएंगे, क्या होंगे, ये भी comes under health promotion. Okay, so this is all what is written in short in the approaches. Going to next is how lifestyle related issues contribute to non-communicable diseases. Non-communicable diseases like hypertension, diabetes, renal illnesses, CKD has become so rampant that every city, if you see, would be having hundreds of dialysis centers. आज से 25-30 साल पहले भी कभी ऐसा नहीं होता। Why it has become again non communicable disease है ये? ओके, सो ये क्यों होती है?
तो इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं। एनवायरमेंटल रिस्क फैक्टर्स क्या है? ग्लोबलाइजेशन। मैं आज इधर बैठी हूँ, मुझे नहीं पता है, हो सकता है कल मैं मुंबई गई हूँ, परसों मैं दिल्ली जा रही हूँ, उसके बाद मैं लंदन जा। सो पीपल आर ट्रैवलिंग अ लॉट। दे आर, बोलते हैं ना, आज तो ग्लोब छोटा सा हो गया है, एक बॉल के जैसा हो गया है। यू कैन रीच एनीवेयर। It's all the part of globalization. Sitting over here in a small place, I know what's happening in America. I know what's happening in Argentina. I know what's happening in Delhi. I know everything. So this is what globalization. और उनकी जो habits हैं, I'm able to see, I'm able to inculcate, but usually it happens that we inculcate wrong habits than the right habits, right? Urbanization, छोटी जगहों से निकल के लोग बड़ी जगहों में आते हैं नौकरियों के कारण, और वो होना ही है। मैंने भी वो किया, आप भी वही करते हैं, हमको करना ही पड़ेगा। अगर हम गांव में बैठ जाएंगे बिना नौकरी के, हु इज गोइंग टू फीड अस? हाउ आर वी गोइंग टू हैव अ इम्प्रूव्ड लाइफस्टाइल? पॉवर्टी। आप बड़े शहरों में बैठे हुए हैं, आपको लगता होगा क्या पॉवर्टी, इंडिया में रईस लोग ज्यादा है, पुअर कम है। ऐसा है नहीं। ग्रास रूट में आप आके देखेंगे तो the poverty is to such extent that there are huge suicide rates amongst the farmers. And believe me, the place where I'm sitting, it has the maximum. It hurts you. Okay, this is what is our country. Okay, low education levels. जितना हम पढ़ेंगे, सिर्फ पढ़ने से डिग्री प्राप्त करना नहीं होता है। पढ़ना मतलब अपने आप को शिक्षित करना। यू हैव टू एम्पावर योरसेल्फ। एक अगर औरत पढ़ी हुई लिखी रहती है, वो अपने घर को भी खाना बराबर खिलाएगी, वो अपने बच्चों को भी अच्छे से रखेगी। इन्फेक्शन के जो चांसेस रहते हैं, मच्छर मक्खी गंदगी, वो सबसे भी बचा सके। ओके, so education plays a huge role, not only in developing the minds and for industrialization, but also for having a healthy community, for having a healthy lifestyle. Stress, इसके तो मेरे को एक्सप्लेन ही नहीं करना है। आई थिंक द मोस्ट स्ट्रेसफुल पीपल आर द नर्सेस। इतना लेवल ऑफ स्ट्रेस, नॉट ओनली फिजिकल स्ट्रेस, वी हैव फिजिकल स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस कंबाइंड। सो वी हाउ स्ट्रांग वी हैव टू बिकम। बिहेवियरल रिस्क फैक्टर्स जो होते हैं, जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस को आगे बढ़ाते हैं, वो होता है टोबैको, अनहेल्दी डाइट। अनहेल्दी डाइट तो आज के समय में बहुत है, पैक्ड फूड्स, टिन्ड फूड्स, देन restaurants. There was a study which was done that for every 3 restaurants there will be one hospital which will be created. You have an opportunity to create one hospital for every 3 restaurants. So this is how it is becoming bad to worst, that the eating joints are going on increasing, and so is the hospital numbers. Physical inactivity, चाहे आज आप एक नर्स हो, बट आपका पूरा काम पेशेंट को करने के बाद में क्या होता है? आप बैठ के कंप्यूटर पे पूरा फीड करते हो। पहले कहाँ ऐसा होता? नहीं हो रहा। Still in nursing and medicine and everything, in healthcare sector overall, I would say we still have mobility. What about other sector? What about industries? Everything is automatization. ऑटोमेशन पे सब कुछ चल रहा है। धीरे धीरे करके एआई आ रहा है, और जो हम थोड़ा बहुत दिमाग का काम करते थे, अब वो भी चाह रहा है। तो फिजिकल नाउ कुछ समय में हमको वो लिखना पड़ेगा, मेंटल इनएबिलिटी बिकॉज ऑफ एआई, है ना? तो ये सारी चीजें जो होना शुरू हुई हैं, इट्स बिकॉज ऑफ दीज ऑल फैक्टर्स, जो हम ये कम्युनिकेबल डिजीजेस हमें हो रही है। बायोलॉजिकल फैक्टर्स क्या होते हैं? हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल्स। एक केक का पीस खाया, आपको पता है उसके अंदर कितना कार्ब्स है, कितना शुगर कंटेंट है। आपने एक ब्रेड का स्लाइस खाया, उसमें कितना ग्लूकोज रहता है। प्रेशर्स आपके क्यों बढ़ रहे हैं? बिकॉज वी आर ईटिंग लॉट ऑफ टिन्ड फूड्स, वी आर ईटिंग लॉट ऑफ पैकेज्ड फूड्स एंड एवरीथिंग। जस्ट
वेट गेन जो आपको बताया हुआ था, एबनॉर्मल लंग फंक्शन, अब जब इंसान का वेट ही इतना ज्यादा रहेगा, प्लस हम लोग बाहर निकल के सांस ही नहीं ले रहे। आई जस्ट रिसेंटली मेट यंग गर्ल, शी इज जस्ट 19 years old, and she had come to the emergency department basically for taking a injectable of vitamin D. And I was like, I just was going, I mean, I was on rounds, so I happened to see her. She's studying in the college, only medical college की फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट। तो मैंने बोला बेटा कैसे आना हुआ, क्या हो गया ऐसे ऐसे। एंड देन शी टेलिंग मी, मैडम वो इंजेक्शन लेनी पड़ती है मुझे, और मैं इसीलिए यहाँ पर इंजेक्शन लगाने आई। क्यों लगाने आए हो? तो मेरा विटामिन डी बहुत कम है। विटामिन डी कम है इस एज में, 19 की एज में? धूप नहीं, नहीं धूप तो आते जाते मिलती है जितनी मिलती है वो, और उसमें भी हम अम्ब्रेला लेते हैं और बस पूरा समय एसी के रूम में बैठे हुए रहते हैं। सो हाउ एम आई गोइंग टू गेट इट? सो दीज आर ऑल बायोलॉजिकल फैक्टर्स which are causing these non-communicable disease. Her bones, I mean, her vitamin D level was 13. I mean, seriously, 30 नॉर्मल है, आपका 13 है, एक 19 साल की बच्ची का। तो दिस इज वेयर इंडिया इज, और वो भी मेडिकल स्टूडेंट। सो वेयर आर वी स्टैंडिंग, राइट? क्रॉनिक नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जो रहते हैं, जैसे हार्ट डिजीज हो गई, स्ट्रोक है। आपको पहला एग्जाम्पल मैंने स्ट्रोक का बताया, इन्फाक्ट का बताया, फिर उसके बाद में कैंसर, क्रॉनिक लंग डिजीजेस जो रहती हैं, क्रॉनिक किडनी डिजीजेस जो रहती हैं, ये सारे आर द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स टू एनलार्जिंग योर नॉन कम्युनिकेबल। पहले जब, आज से आई वुड से 30 साल पहले जब नर्सिंग में हम पढ़ा करते थे, तो हम पढ़ते थे कम्युनिकेबल डिजीज, ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया, डेंगी, देन हेपेटाइटिस बी, ये सारा बहुत हमको डिटेल में पढ़ाया जाता। धीरे 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 करके अब ये कम होते जा रहे हैं, कम्युनिकेबल डिजीजेस कम होते जाते हैं, नॉन कम्युनिकेबल बढ़ते जा रहे हैं विद इन अ स्पैन ऑफ 30 years। सो मच चेंजेस, राइट? So all these are contributing factors, and this is exclusively because of our lifestyle, bad lifestyle। हम तो करना चाहते हैं, बहुत लोग बोलते हैं हम तो करना चाहते हैं, पर हमारे पास में हिंड्रेंस है। क्या हिंड्रेंस आते हैं अगर आप करना चाह रहे हो? क्या हिंड्रेंस है? सबसे पहला हिंड्रेंस हमारे कंट्री में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। हेल्थ को कितना मिलता है? जीडीपी में से कितना मिल रहा है हमको फंड? इतनू सा, बाकी सब सेक्टर को बढ़ाना। सो अपने को ये इम्पोर्टेंस सरकार को दिलवानी है कि हेल्थ जब तक नहीं रहेगी, गवर्नमेंट इज नोइंग इट, बट आर ग्रोथ, आर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इज नॉट of a developed country. We also have to understand. And that's why government is now promoting PPP model, मतलब public private partnership, कि प्राइवेट सेक्टर वाले भी सामने आओ, पब्लिक सेक्टर वाले भी आओ, जोड़ो हाथ। और सरकार चाहती है कि मिलके हम करें। सो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी जब हमारे दीज काइंड ऑफ मॉडल्स आर एडिंग आउट। एजुकेशन एक्सेस एंड क्वालिटी, आप अगर आप ग्रास रूट में जाएंगे, प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल में, ग्रास रूट में, Tier 3 विलेज में, लिटरली नथिंग इज देयर। हम बड़ा बड़ा बात कर रहे हैं दिल्ली में, मुंबई में, पुणे में बैठकर, बट ग्रास रूट में आइए, नहीं है चीजें। एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भी कुछ नहीं है, एक प्राइवेट हॉस्पिटल में क्वालिफाइड नर्स भी नहीं। ओके, सो देयर इज द प्लेस वेयर वी हैव टू कम टुगेदर एंड वर्क टुगेदर। अभी मेडिकल काउंसिल के अंदर में एक विंग है जो जो फेक डॉक्टर्स को, या जो डॉक्टर्स रजिस्टर्ड नहीं है उनको वो करती हैं, पकड़ती हैं और उनको डीबार किया जाता है, उनके ऊपर केस चलाया जाता है। नर्सिंग में हमारा कहाँ है ऐसा? हमारे पास में भी फेक नर्सेस भर भर के हैं, हमने कहाँ किया? दिस इज वेयर वी हैव टू कम फ्रॉम। हेल्थ केयर एक्सेसिबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी मतलब अगर आज मुझे कहीं कुछ चोट लगती है या हाईवे पे मेरे को अगर एक्सीडेंट होता है, तो कितना नजदीक एक नियरेस्ट हॉस्पिटल, कितना जल्दी मुझे सर्विस मिल सकती है, दैट इज एक्सेसिबिलिटी। एक विलेज से लेकर सिटी तक आने तक में क्या डिस्टेंस है? कांट वी ब्रिंग दैट हेल्थ केयर सेक्टर टू द विलेज इटसेल्फ? दैट इज व्हाट इवन
the government is working at, and that is what we are talking of the Viksit Bharat. Okay. Neighborhood and the environment which is there is also a problem. लोगों का मेंटालिटी, आप अगर गांव अगर में जाते रहेंगे, उनको हॉस्पिटल में नहीं जाना है। दे आज दिन तक हमारे देश में झाड़ फूक होता है, अगर आपको पता होगा तो, अगर नहीं तो लेट मी टेल यू। आज भी जड़ी बूटी के साथ में खाने वाले बहुत सारे हैं, जो खराब होके कैंसर इतना ज्यादा होता है कि इट ऑल कम्स आउट। क्या कर रहे थे हम? जड़ी बूटी खा रहे थे, बाबा जी हमको खिला रहे। सो आवर एनवायरमेंट विल हैव टू बिल्ड दैट। ओके, सो दैट इज अ हिंड्रेंस। एंड सोशल नॉर्म्स, कुछ कुछ कल्चर में कुछ कुछ चीजें डिफरेंट होती हैं, ये हमारे हिंड्रेंस है हमारे देश के। बट इसको भी हमें ओवर पावर करने का है, धीरे धीरे कर। These are other which we, I think we have already shared with. Now, how are we going to bring about this through पब्लिक हेल्थ? पब्लिक हेल्थ के थ्रू हम कैसे लाएंगे, और इसमें नर्स का क्या रोल है? पब्लिक हेल्थ आप सबको पता है, जब एट अ लार्जर लेवल व्हेन वी डू इट, वी कॉल इट एज पब्लिक हेल्थ। जस्ट एक हिस्ट्री बताती हूँ, उसके बाद में हम नर्सेज रोल पे आएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आउटब्रेक्स हुए थे इंडिया में, आज दिन तक इतने सारे हो चुके हैं, एंड द रिसेंट वन विच यू एंड मी हैव सीन इट इज द COVID-19, right? Starting from chikungunya to Japanese fever to meningitis to SARS to Nipah, H1N1, everything we have seen it. आप सब लोग मेरे को उम्मीद है कि 2006 के बाद वाले भी हो, 6 के बाद वाले ही हैं, तो सोचो हम लोग ने कितना ही घूम फिर के हमने सब कुछ देख लिया। सो अब आगे सरकार क्या क्या कर रही है, या आप लोग को भी पता है कि हम जो कम्युनिकेबल डिजीज है उसको इरेडिकेशन पे लगे हुए हैं, कि हमारे ये कम्युनिकेबल डिजीज इरेडिकेट हो जाने चाहिए, जो हम काफी हद तक सक्सेसफुल हो रहे हैं। बट एक मेजर सेक्टर ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हमने पैदा कर लिया अपने साथ, जो वो हम साथ में लेकर घूम रहे हैं। ओके, सो आज हम बोल रहे हैं कि ट्यूबरक्लोसिस के रेट कम हो रहे हैं, मलेरिया काफी कम हो गया है, लेप्रेसी तो ऑलमोस्ट इरेडिकेशन पे ही है। बट फिर भी जो हमारे टारगेट्स थे, हम उस टारगेट से काफी लो चल रहे हैं। हमारे देश का टारगेट था कि हम ट्यूबरक्लोसिस 25 में, 2025 जो ये साल चल रहा है, इरेडिकेट हो जाएगा। कहाँ इरेडिकेशन हो, बढ़ ही रहा है, राइट? बट फिर भी वी हैव बीन एबल टू कंट्रोल इट, वी हैव डॉट सेंटर्स एवरीवेयर, वी आर एबल टू प्रमोट दैट अवेयरनेस कि ट्यूबरक्लोसिस इज नॉट अनक्यूरेबल, जो आज से काफी साल पहले था। ओके, सो वी हैव बीन एबल टू ब्रिंग दैट शिफ्ट, इंप्रूवमेंट। अब हमें कम्युनिकेबल डिजीज पे भी करना है। बहुत सारे गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स हैं, आई एम श्योर आप लोग ने पार्क की बुक पढ़ी होगी, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग आप लोग ने पढ़ा होगा, बहुत सारे हैं। आपके हॉस्पिटल में, आपके एरिया में, आपके प्रांत में आप कौन से ये गवर्नमेंट के स्कीम्स इस्तेमाल कर सकते हो? आपको पता है, स्ट्रोक के लिए, डायबिटीज के लिए, हाइपरटेंशन के लिए, LSCS के लिए, एंड डायलिसिस के लिए, ये सब के लिए गवर्नमेंट के पैकेजेस हैं। जीरो मनी, जीरो, एब्सोल्युटली जीरो, नॉट ओनली आयुष्मान, उसके अलावा किसी को स्ट्रोक हुआ, किसी को एक्सीडेंट हुआ, उसके लिए अलग पैकेजेस बने हुए हैं गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट देती है। आपको पता होना चाहिए, आपको और मुझे। सो वी हैव टू लर्न दिस दैट इट इज आवर राइट। हमें कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में पढ़ाया जाता है, बट उसके बाद में क्योंकि वी आर नॉट प्रैक्टिसिंग, सो अंडरस्टैंड आपका रोल है इसको प्रैक्टिस करना, अपने पेशेंट्स के लिए प्रैक्टिस करना, अपने लिए प्रैक्टिस करना। नाउ व्हाट एज अ, जो हमने ये सब बात की उसको एक नटशेल में डाल दिया है कि आपका रोल एज नर्स आपका क्या होना चाहिए। फर्स्ट इज असेसिंग, आई टोल्ड यू, अर्ली डिटेक्शन आपका सबसे इंपॉर्टेंट रोल वो है। अगर आपके पास में कोई पेशेंट आता है, अगेन आई गिव यू वन, लास्ट मंथ we already have from past 6 years कि जो पेशेंट रिलेटिव आते हैं उनके लिए हमने पूरे हॉस्पिटल में 6 काउंटर्स रखे हुए हैं, जिसमें वो लोग आके अपना ब्लड शुगर चेक करवा सकते हैं और BP चेक करवा सकते हैं, हाइट वेट उनकी देख के पूरा होता है। ओके, तो 6 काउंटर्स पे
They can take free RBS, blood pressure checking, height weight, BMI basically. We check it. Now, because we know that this area is prone for oral cancers, along with the oral surgery department, we have also started doing a basic test. Basic. हम सिर्फ दो चीज करते हैं. वो ही नर्स जो वहां पर काउंटर पे 6 काउंटर्स पे बैठती है, 6 नर्सेज हैं हु सिट ऑन दैट. तो जितने पेशेंट आएंगे उनके जितने भी रिलेटिव, इन पेशेंट आउट पेशेंट, दे कैन गो टू दीज काउंटर्स. और बहुत सारे आते हैं, एक दिन के नहीं तो भी हमारे पास में करीब 300-350 पेशेंट ये प्रिवेंटिव ओपीडी में आते हैं. वी कॉल दैट एज प्रिवेंटिव ओपीडी. प्रिवेंटिव ओपीडी में हमारे पास में 300-350 पेशेंट्स आते हैं. वो 300-350 पेशेंट का सिर्फ 2 क्वेश्चन हम लोग पूछते हैं. आपके मुंह में कोई छाले हैं क्या? अगर कोई बोलता है हाँ है, तो नर्स एक बार चेक कर लेती है और उसको फिर फर्दर ओरल सर्जरी डिपार्टमेंट में रेफर कर देती है. और दूसरा है 3 फिंगर टेस्ट. मुंह खोलो आ. अगर 3 फिंगर वो पेशेंट की खुद की मुंह के अंदर जा रही है, मतलब उसको माउथ ओपनिंग में और कैंसर का कोई ज्यादा दिख नहीं रहा है, तो ये 2 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया. हाउ इंपॉर्टेंट इज दैट? एंड बिलीव मी, हमने ये पिछले महीने में ही स्टार्ट किया है. एंड वी वर एबल टू आइडेंटिफाई 6 पेशेंट्स who were at the early stages of cancer. Such a remarkable victory, I would say. सिर्फ 2 क्वेश्चन नर्स ने एक्स्ट्रा पूछे. मुंह खोल के दिखाओ, 3 उंगली देखते हैं. 3 फिंगर टेस्ट. एंड डू यू हैव अल्सर्स? हमने 6 पेशेंट्स आइडेंटिफाई किए हैं जो हमने ओरल सर्जरी डिपार्टमेंट में भेज के उनकी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर ली है. कमेंडेबल जॉब फ्रॉम द नर्सिंग डिपार्टमेंट. नेक्स्ट इज बिल्डिंग कैपेसिटी. एज ए नर्स इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. आज जो आप लोग सब आए हो, दिस इज नथिंग बट बिल्डिंग कैपेसिटी. आप खुद चाहते हो कि मैं ये कुछ चीज सीखूं और ये सीख के इम्प्लीमेंट करूं. सो दिस itself is a commendable job, and every nurse should put efforts into building capacity. Every hospital should invest in nursing. The more the hospital come forward investing in nursing, जैसे सरकार बोलती है ना, एक औरत को पढ़ाओगे तो आप पूरी फैमिली को पढ़ाओगे, वैसे ही अस्पताल को समझना चाहिए कि आप एक नर्स को उसकी कैपेसिटी बिल्ड करोगे ना, आप उसके इर्द गिर्द जितने पेशेंट आएंगे, जितने रिलेटिव आएंगे, आपने उनको पावर कर दिया, आपने उनको बढ़ा दिया. ओके, so this is the power of capacity building, and I congratulate all of you all that you are here today. Then is participating as a proactive key player in intersectoral collaboration. इंटरसेक्टोरल कोलैबोरेशन मतलब यही, जैसे मैंने आपको बताया, एक नर्स ने आइडेंटिफाई किया, ओके ये हो गया, चलिए आप ओरल सर्जरी डिपार्टमेंट में जाइए. यू हैव ऑलरेडी कॉल्ड द ओरल सर्जरी डिपार्टमेंट कि मैं आपके पास में ये नाम का पेशेंट भेजी हूँ, जो ये पेशेंट को मुझे ये डाउट लग रहा है. उन्होंने भेजे तो ज्यादा थे, 17-18 पेशेंट भेजे थे, उसमें से 6 आइडेंटिफाई हुए. सो दिस इज कोलैबोरेशन. एज अ नर्स यू आर सपोज टू बी डूइंग दैट वर्क. आपको वो एफर्ट निकाल के कॉल करके लोगों के साथ में कोलैबोरेट करना ही है. सोशल वर्कर से एफर्ट लगा के वो चीज करवानी है. आपके डॉक्टर्स को बोल के फर्दर असेसमेंट करवाना है. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज कोलैबोरेशन. देन इज टैकलिंग मल्टीपल हेल्थ डिटर्मिनेंट्स. मतलब जैसे आपको मैंने पहले बताया कि हेल्थ इज नॉट ओनली वन साइड, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, तो आपको सारे फैक्टर्स लेने हैं. अगर कोई पेशेंट के सिर्फ फाइनेंशियल फैक्टर नहीं होता है, फैमिली फैक्टर भी होता है. एक लेडी को आपने आइडेंटिफाई किया, उसको बिठा दिया, उसके 2 साल का बच्चा है घर पे, क्या वो बैठ पाएगी यहाँ पर? क्या वो एडमिट हो जाएगी? नहीं होगी, वो चली जाएगी, क्योंकि उसका ध्यान उधर है, उसका एक 2 साल का बच्चा घर पे है, उसको कौन देखे? So you have to understand that. As a nurse, you have to understand that there are a lot of issues. There are a lot of social issues, lot of family issues everyone is having. So you'll have to tackle those at a multiple level. Evaluation of health. बहुत सारे जो स्कीम्स हमारी रहती है, कुछ भी रहता है, उसके लिए आप पेशेंट वो यूटिलाइज किया या नहीं किया, वो एक नर्स की भी जवाबदारी है. सो एनी काइंड ऑफ, आपने देखा होगा, सबसे एक बढ़िया एग्जांपल है पोलियो वैक्सीनेशन का. तो जब हम पोलियो के वैक्सीनेशन देते हैं, सरकार हमसे काउंट लेती है, नर्सेज ही करती हैं पूरा काम. एंड बिलीव मी, एट टाइम्स इट इज ओनली द एएनएम्स हु आर डूइंग दिस.
So they give account, they give a statistics to the, then only government comes to know that again the research. Your side You're not able to hear it. थोड़ा सा You are not able वीडियो रुक रहा था. या अभी अब to. नाउ यू आर ऑडिबल मैम. हेल्थ प्रोफेशन के लिए जो आपको रिसर्च जनरेट करने का है, उसके कि आपको दिमाग लगा के रिसर्च चालू करने का है. कोई रिसर्च कर रहा है, उसके आप पार्ट बन सकते हो. एंड डू इट ऑनेस्टली. The more you do it honestly, things will be better. Okay. So this is what the role of nurses, and the nurse have to make sure that you are attaining empowerment. बहुत बार मैंने लोगों को सुना है, बहुत बड़े बड़े प्लान, let the nurses be empowered. Nurses cannot be empowered. We have to become empowered. क्या मुझे कोई पावर थाली में लाके देगा, सर्व करेगा? नहीं. मुझे वो पावर लेने का है अपने आप से. मैं अगर अपने पेशेंट के लिए बोलना चालू करूंगी, मैं अपने पेशेंट को समझाना चालू करूंगी, मैं अपने पेशेंट के लिए ऑनेस्टली काम करूंगी, आई एम एम्पावर्ड ऑटोमेटिकली. देयर इज नो रिक्वायरमेंट. एजुकेशन not only to the community but also myself. Prevention across lifespan, चाहे वो बच्चा हो, उसके लिए भी प्रिवेंटिव स्ट्रेटेजी है, या 100 साल का एक बुजुर्ग हो, उसके लिए भी प्रिवेंटिव स्ट्रेटेजी है. तो पूरे लाइफ स्पैन में नर्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इम्प्लीमेंटिंग प्रिवेंटिव स्ट्रेटेजीज. एंड ऑल्सो अपने लिए भी इस्तेमाल करनी है, दूसरों के लिए नहीं है. हेल्थ इज नॉट फॉर अदर्स, हेल्थ इज फॉर मी फर्स्ट. हेल्थ इनइक्वालिटीज जो है वो हमें रिड्यूस करनी है. आज के इसमें अगर आप हमारे देश में देख लोगे, देयर आर लॉट ऑफ इनइक्वालिटीज. कोई अगर पैसे वाला है तो शायद उसको बहुत अच्छी सर्विसेज मिल सकती हैं, और जिसके पास में नहीं है वो नहीं मिल सकती है. गवर्नमेंट इज ऑल्सो ट्राइंग टू ब्रिज दैट गैप. We as nurses should not get into any form of inequalities, be it caste, creed, money, anything. The way I'm treating a rich man, the same I have to treat a poor, because we have taken the oath. Okay, that is what we should not get involved to all these things. Then environmental and social interactions जो रहता है, small efforts, आंगनवाड़ी के प्रोजेक्ट्स, सोशल कॉज के लिए, आप अगर ब्लड डोनेशन के लिए अपने घर में भी 4 लोगों को बोल के आपके हॉस्पिटल के ब्लड डोनेशंस भी करवा देंगे, तो वो भी एक इंटरवेंशन है आपकी तरफ से प्रिवेंशन के लिए. Okay. So these are very, very small things which we can do it. And the only thing is the intent to do it, because आज के समय में नर्सेस के हाथ में इक्वल रोल है जो डॉक्टर्स के हाथ में. We are not behind. I do not consider myself or my nurses as the backbone. I consider my nurses and myself as the heart of our organization. And for that, we'll have to shape it, our profession, and make our profession healthier and more stronger. Not say हम बैकबोन है, हम बैकबोन नहीं है. आज हम दिल की धड़कन है, आज हम धड़कन है हेल्थ केयर की, एंड वो हमें उसको चलाना है. ओके, सो दैट इज फ्रॉम माय टेक. दैट अगर आज आप इस सेशन को सुना है, थोड़ा बहुत अपनाया है, तो मैं बोलूंगी पहले अपने लाइफ में अपना लो. जैसे ही आप अपने लाइफ में अपनाओगे, ऑटोमेटिकली यू विल ट्राई एंड इम्प्लीमेंट इट टू अदर्स. टिल द टाइम you cannot be just propagating something which you yourself are not doing. So that's from my side. And if you have questions, let me check the chat box also. Yeah, packages for private sectors, for government only? No, private sector also has to accept. आप आज जितने भी हॉस्पिटल्स में जाओगे, आयुष्मान भारत है ही है.
देन जो जैसे महाराष्ट्र में MJPJ होता है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का एक स्कीम है, CM every opportunity to talk to your patient when the patient comes to the hospital. That's my second take. अब क्या हो गया है amongst the nurses? I have been in this profession now from like, पढ़ाई को इंक्लूड कर लेंगे तो 3 डिकेड हो चुके हैं, तो लगता है कि पेशेंट के साथ में कोई बात करने के लिए नहीं बच गया है। हम अपना काम बहुत मैकेनिकली करते हैं, बेड साइड से वापस आ जाते हैं, कंप्यूटर पे लगे रहते हैं, टैब दिए हुए हैं, वो करना है। इट्स ऑल ऑल मैकेनिकल, एंड दिस ऑल्सो क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। जब भी टाइम मिलता है फटाफट या तो व्हाट्सएप है या तो रील है, इट्स बिकमिंग वर्स्ट टू बैड टू वर्स्ट। आप कर सब कुछ करिए, बट पेशेंट के साथ में भी बात करिए। यूटिलाइज those reels for implementing knowledge to the patient. Make reels for your hospital. Do that. Do that. Show it to your patients. Probably they'll enjoy it also. It will be entertainment as well as information. Doesn't look like chat box Because now doesn't everything have. is clear very in a very good way. So this is a very good session. I think सबको बहुत पसंद आया है, बहुत सारी चीज़ें डाउट्स से लोगों के क्लियर हुए हैं एंड एग्जैक्टली ये बहुत ज़्यादा इनके लिए इंफॉर्मेटिव भी है. So thank you so much, ma'am, for your valuable time and the information. Thank you so much. Thank you so much, and all of you all, good luck. Uh, all 45 plus participants, whoever is there. This shows that in spite of the busy schedule, these people are going towards capacity building. So it's a good thing which is happening in nursing. I really appreciate that. I appreciate the efforts taken by Astron also, कि आप लोग effort लेके ये करवा रहे हैं. So people who are there also, उनका भी बहुत मतलब ये खुद चाहते ही हैं अपना करना. So that's a good step, and they would do great. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you very Okay. much. Thank you so much. Bye. Good luck to all of you all. Same to you, ma'am. Thank you, ma'am. Yeah. Thank you. So थैंक यू सो मच टू ज्वाइन दिस वेबिनार. आई थिंक सबको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर भी हुई होंगी एंड आप सब लोग अपने रिस्पेक्टिव काउंसलर से कनेक्टेड हैं. तो वी आर कमिंग विद सम न्यू कोर्सेज, जैसे मैंने पहले ही बताया था. नाउ दे आर रेडी, हम लोग उसको भी लॉन्च करने वाले हैं. सो अपने काउंसलर से आप कनेक्टेड रहिए एंड कुछ भी डाउट होता है एंड प्लीज़ आप ये चीज़ भी बताइएगा कि आप आगे आने वाले टाइम पर कौन से वेबिनार्स और कौन से टॉपिक्स आप चाहते हैं. तो डेफिनेटली वी कम विद दैट ऑल्सो. सो थैंक यू सो मच.